Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So आप सब ये चैप्टर अच्छे से देख रहे होंगे. So I am here with you with the new video for the same chapter, that is heredity and evolution, and this is the third video for the same chapter. And in today's video we will learn about process of evolution, speciations, geographical isolation, genetic drift and natural selection. So now let's start today's topic. Now, what is the meaning of evolution? So, to understand the same concept, see at the picture. So, here you can see that the skull shape is changing as the time is changing, or as the year is passing on, the shape of skull is changing. So, if you compare the first skull with the last skull, then you can see that there is a change, okay, in a shape of a skull, as well as if you see the physical structure of primitive man to the evolved man. So there is a change in a physical body, okay. So the sequence of gradual changes which take place in inherited traits, the sequence of gradual changes, थोड़े थोड़े टाइम से जो ग्रेजुअली चेंज होता है, ठीक है, और वो इनहेरिट होता है नेक्स्ट जनरेशन में, ओके. कब इनहेरिट होता है, कितना समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर इन विच न्यू स्पीसीज आर फॉर्म. तो जो भी फिजिकल बॉडी में ग्रेजुअल चेंज आया और वो इनहेरिट हुआ, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद नए स्पीसीज के रूप में कन्वर्ट होकर आया, उसको हम बोलेंगे इवोल्यूशन, एज यू आर सीइंग ओवर हियर. सो दिस इज नथिंग बट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन दैट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर. Scientists has proven that life evolved in the form of simple unicellular organism. लाइफ है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई है, मतलब अमीबा से जैसे ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई है, ठीक है. एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट टुडे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर्स. मतलब सबके एक एंसेस्टर्स थे, जैसे हमारे एंसेस्टर्स मंकी है, वैसे सभी के कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है. द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइज ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री. तो इवोल्यूशन होने के लिए एंसेस्टर होना ज़रूरी है, और मोस्टली हर एक स्पीसीज के एक कॉमन एंसेस्टर होते हैं, ठीक है. अब हम आगे जाते हैं. प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. सो सी स्टूडेंट्स, हियर 3 पिक्चर्स आर गिवन टू यू. See, the insect that you are seeing is nothing but a beetle, okay. So in first picture, if you see and just figure it out, then you will see that a crow is trying to eat the beetles, okay, and the crow is just eating the red beetles. Why? Because the population is more. If you see over here, the population of a red beetle is more over here, okay. That's why crow is eating the beetle, as the population is more. But as the population is more, so what happens in next phase? More green beetles are generating same way. More and more green beetles are evolving, and same way if you see in the third phase, then red population is decreasing, and at last phase you can see that only green beetles are present. So why this happened? Because in initial or in the starting stage, if you see, then there is a more population of red beetles and there were few green beetles. So stage by stage, when this process continued, then at last only green beetles were surviving. Now let's try to look at the second scenario. Here you can see that there are red beetles, but in second phase there are some blue beetles present over here. Now here also same scenario, population of red is more, okay. So one elephant was walking in a jungle and he just walks over a beetle. So what will happen? This all red beetle will be dead and only few of the blue beetles will be surviving, okay. And these blue beetles will just progress the population, and at last which beetle is present over here? Blue beetle. Why? So because of some natural selection, right? Here elephant has selected naturally. We don't know that which color is present besides him, right? He just put leg
and in a random manner as the red population was more, so more red population was vanished and only few blue beetles were existing. Okay, now let's focus on third scenario. Here you can see there are healthy red beetles, but stage by stage if you see, then the beetles are becoming weak. These beetles are more weak. So at last generation, so here if you see that in first generation the beetle are healthy, but in second generation they are weak, again in second generation they are weak, and from third generation to fourth generation if you observe carefully, then again the beetles are healthy. Why? Because there is a changes in the physical structure of beetle due to food place. ये बीटल को अच्छा खाना मिला होगा, ये दोनों बीटल को अच्छा खाना नहीं मिला होगा, अच्छा खाना मिलते हुए भी एनवायरनमेंट सूट नहीं होता है तो भी बीटल है वो पुअर हो गए. सो आर यू ऑल गेटिंग राइट? सो देयर इज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट right present over here. We will see each and every phenomena in detail. Now let's continue. So in situation 1, a group of red ants is living in a bush, or red beetles are living in a bush. A hunting bird can easily spot red ants in the green background. रेड एंट है वो फटाफट स्पॉट हो जाते हैं. देखिए मैं आपको एक सिनारियो समझाता हूँ यहाँ पे कि एक ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के ऊपर अगर मैं कोई भी ग्रीन डॉट करूँगा तो आपको नहीं दिखेगा. right now I am doing green dot, but now if I am just placing red color over here, then you can easily contrast to background. So that's why a hunting crow is eating red beetles. Okay, because of some error in DNA replication, some blue ants came into origin. Hunting bird cannot spot blue ants against a green background. As a result, blue ants survive and red ant become extinct over a period of time. ओके तो यहाँ पे आप देखिए कौन एक्सटिंक्ट हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है रेड. ओके और तो सर्वाइव कौन कर रहा है, सर्वाइव यहाँ पे कर रहा है ग्रीन. ओके एट लास्ट स्टेज द ओरिजिन ऑफ ब्लू एंट. अभी ये जो सिनारियो है वो नेक्स्ट पिक्चर में है. हैपेंड बाय चांस बट इट गिव सर्वाइवल बेनिफिट टू एंट्स. फाइनली ब्लू एंट कुड सर्वाइव एंड प्रोलिफरेटेड, मतलब कि दे कैन लिव इन अ सराउंडिंग. ये ब्लू एंट वाली कहानी यहाँ पे है. सी what it says that as a result blue ant survived. Okay, the origin of blue ant happened by a chance. तो ये सिचुएशन 2 को समझिए कि पहले क्या थे, रेड एंट्स ही थे, बट ड्यू टू डीएनए एरर. देखिए अभी मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ तो नहीं दिख रहा होगा. ओके देयर इज DNA error due to which one blue ant is appearing. If you see it clearly, one blue ant is present over here in the second stage. Blue ant is exactly over here. Okay, so what happens when an elephant comes and he just walks and blue ants are surviving. So here you can see that blue are surviving and again red are extinct. So in situation 2, in same group, some blue ants come into origin. Ants of both color were almost equal in population. One day an elephant came and trampled the bushes. Okay, all the red ants perished in the accident, leaving only the blue ants. बस अभी red ants थे वो vanish हो गए. This resulted in extinction of red ant, but blue ant could continue their race. Race मतलब दौड़ना नहीं है, रेस का मतलब है वो आगे अपनी पॉपुलेशन, वो वाले कलर की पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी. द सर्वाइवल ऑफ ब्लू एंट वाज बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट. सो दैट इज नथिंग बट अ नेचुरल सिलेक्शन. तो एलिफेंट ने नेचुरली जो फुट रखा था जिसके कारण रेड एंट है वो एक्सटिंक्ट हो गया, ब्लू एंट है वो आगे बढ़े. ठीक है, सो दिस इज अ नेचुरल सिलेक्शन. अगेन दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, because in first situation also if you understand, then crow can see only red and because of the color background. Right now let's try to understand third. Group of red ant were living in a bush due to drought like condition. भूख मरा गया. ठीक है, availability of food became a problem for all the ants. अरे खाना ही नहीं मिल रहा था. All the ants became weak. बहुत ही बीमार हो गए. Underweight second generation में देख सकते हो, third generation में देख सकते हो, बहुत ही weak है. Right, so the trend continue for few generations. Situation changed and plenty of food were available. यहाँ से भरपेट खाना
बहुत ही खाने का सप्लाई हुआ यहाँ पे, ठीक है। Once again they developed their normal size. In this case change in size was not change in phenotype and hence it was not inheritable. देखो चेंज साइज का चेंज है वो फिनोटाइप में आता है। फिनोटाइप मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो फैटीनेस, टॉलनेस, ठीक है, शॉर्टनेस, ये कभी भी इनहेरिट नहीं होती है, ऐसे यहाँ पे बताया है। In this case, this case specifically, change in size was a change in phenotype and hence it was not inheritable. The change in size could not produce variation and evolution in the species. Change in size, सुनना, could not produce variation. साइज चेंज है वो कभी भी वेरिएशन स्पीसीज में नहीं लेके आ सकता है, या फिर वो इवोल्यूशन भी नहीं कर सकता है स्पीसीज का। हाइट बड़ी मतलब इवोल्यूशन नहीं बोला जाता है। सो आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द थ्री सिचुएशन। लेट्स मूव फर्दर स्पेसिएशंस। सी स्टूडेंट्स, वन बर्ड इज shown over here. This is ancestor finch, दादा के परदादा है, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इसमें से 3 और ऑफस्प्रिंग जनरेट हुए। एक था इंसेक्ट ईटिंग, एक था वो वुड पेकर बना, और तीसरा है वो सीड्स बहुत खाता है, ठीक है। स्पीसीज इज अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल विच कैन ब्रीड टुगेदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। द प्रोसेस देखो, सिमिलर इंडिविजुअल है वो अपने आप मतलब सेम स्पीसीज के साथ ही रिप्रोडक्शन करेंगे और नए ऑफस्प्रिंग को जनरेट करेंगे। बट द प्रोसेस बाय विच द न्यू स्पीसीज आर जनरेटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज आर कॉल्ड स्पेसिएशंस। नए स्पीसीज जनरेट हुए एग्जिस्टिंग स्पीसीज से कोई भी सिचुएशन के कारण, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिएशन। ओके, नाउ विच आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर स्पेसिएशन और फॉर जनरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। सो फर्स्ट फैक्टर इज जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाया है कि यहाँ पे ये इंसेक्ट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे, वो दोनों ने अलग अलग रास्ते, ये फर्स्ट रीजियन है और ये नीचे वाला है वो सेकंड रीजियन है, दोनों ने अलग अलग रास्ते, क्योंकि बीच में पत्थर था तो दोनों ने अलग अलग रास्ते हैं वो शुरू किए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों की पॉपुलेशन अलग होगी। यू कैन फाइंड द वेरिएशन इन कलर इन देयर फिजिकल बॉडी। ओके, इट इज़ अ मेजर फैक्टर इन स्पेसिएशन सिंस इट इंटरप्ट्स विद जीन फ्लो। जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज कॉज्ड बाय वेरियस टाइप ऑफ बैरियर। कौन करता है, जैसे कि माउंटेन रेंज, रिवर, सीज, ठीक है, सब जंगल में रहते हैं इंसेक्ट, पर फ्लड आया तो क्या होगा, सब स्प्लिट हो जाएंगे दूसरे एरिया में, ठीक है। Now it leads to reproductive isolation due to which there is no flow of genes between separated group. Reproductive isolation हो जाएगा, मतलब आप ऐसे समझिए कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो मेल यहाँ पे चले जाएंगे और फीमेल यहाँ पे चले जाएंगे, जिसके कारण कोई अलग ही कॉम्बिनेशन दोनों जगह पे, दोनों रीजियंस में जनरेट होंगे। सी देयर इज अ no flow of genes between separated group of population which ultimately results into speciation, जिसके कारण यहाँ पे एक स्पीसीज बनेगा और ऊपर में भी दूसरा अलग स्पीसीज बनेगा, क्योंकि जीन फ्लो नहीं होगा, जनरेशन टू जनरेशन कुछ भी इनहेरिट नहीं होगा, दोनों सेपरेट हो गए जियोग्राफिकली, जिसके कारण नए स्पीसीज जनरेट हुए। अब हम आगे जाते हैं नेचुरल सिलेक्शन इन अ नट शेल। सो एस यू कैन सी ओवर हियर, नेचुरल सिलेक्शन में मैंने वो हंगरी क्रो का ही एग्जांपल दिया है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द बैकग्राउंड। ऑल पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल विल रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन देयर जीन्स। दोज इंडिविजुअल हुज जीन्स आर बेस्ट सुटेड टू एनवायरनमेंट आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। जो एनवायरनमेंट को अच्छे से एडेप्ट करवा पाएंगे वो ही सर्वाइव करेंगे और वही जीन्स को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट जनरेशन तक। तो इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो इसमें आप देख पाओगे कि ये बैकग्राउंड में ग्रीन बीटल्स है वो ज़्यादा अपीयर होते हैं, मतलब ज़्यादा विजिबल है, ठीक है, और वही फेवरेट बन गए हैं, तो सभी को ग्रीन को ज़्यादा खा रहे हैं, जिसके कारण धीरे धीरे आप देखिए फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में देखिए किसको पॉपुलेशन बढ़ी। यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑरेंज बीटल्स थे और यहाँ पे देखिए 3 और 3 6 बीटल्स हो गए, और लास्ट जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो सभी ऑरेंज बीटल्स हो गए हैं, ठीक है। ग्रीन बीटल्स हैव बीन सिलेक्टेड अगेंस्ट एंड ब्राउन बीटल हैव फ्लरिश्ड। ग्रीन बीटल है वो एक्सटिंक्ट हो गया और सर्वाइव हुआ ब्राउन या ऑरेंज बीटल। ओके, ग्रेजुअली फेवरेबल जीन्स विल स्टार्ट टू प्रीडोमिनेट इन पॉपुलेशन एंड लेस फेवरेबल जीन्स विल डिक्लाइन। यहाँ से प्रीडोमिनेशन पे स्टार्ट हो गया था,
और लास्टली वो जो पहले वाले थे वो चले गए। लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। स्टूडेंट्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो एक्सीडेंटली होता है। जिस जेनेटिक वेरिएशन arises फ्रॉम रैंडम म्यूटेशन इन डीएनए सीक्वेंस और ड्रास्टिक चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीन्स बाय चांस। जीन्स में ड्रास्टिक कोई चेंज आएगा या फिर डीएनए कॉपिंग में एरर आएगी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट पॉसिबल है। जेनेटिक ड्रिफ्ट है, फिनेटिक ड्रिफ्ट नहीं है, तो फिजिकल चेंज आता। ठीक है, दिस एग्जांपल इज सेम एज द एलिफेंट फुट। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है, ठीक है, फिनेटिक ड्रिफ्ट नहीं आता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट with changes in gene flow imposed by isolation mechanism act as an agent of speciation which ultimately result in evolution। genetic drift के कारण evolution हो सकता है। it depends on a habitat or you can say it depends exactly on a niches food habitat। ओके, उसके कारण जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो इवोल्यूशन को प्रोसीड करता है। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसके कारण इवोल्यूशन होगा। याद रखना स्टूडेंट्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण इवोल्यूशन होगा, बट फिनोटाइप ड्रिफ्ट जो है उसके कारण इवोल्यूशन नहीं हो सकता है। इवोल्यूशन मतलब चेंजेस इन फिजिकल बॉडी ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।